Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and very warm good morning here because it's morning time here in Pakistan or in Mansehra. My name is Anayat Rahman and I'm recording the fresh video for my channel Learning with Anayat. Before starting this video, I would like to request you to subscribe my channel Learning with Anayat so that you can get new and exciting videos about pedagogy, general English, academic English, and about personality development and civic sense. Thank you very much. So today's video we are going to discuss a very exciting and innovative and a good topic today. And it is important for the students, and youngsters and the teachers as well. So it's a very common topic today. This is the first video about the civic awareness and who is a leader and what is leadership. So we will discuss leader and leadership. तो आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है कि लीडर क्या होता है, लीडरशिप क्या होता है. तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करते हैं, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही कोशिश करते हैं कि ब्रीफली और कम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करें. तो सबसे पहले ये करते हैं कि डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ हु इज़ अ लीडर. सो लीडर क्या होता है. तो लीडर इज़ वन हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट. लीड्स फ्रॉम द फ्रंट मीन हु डज द डिफ़िकल्ट टास्क और हु टेक्स इनिशिएटिव. यानी लीडर वो होता है कि जो मुश्किल काम खुद करता है. ही सेट्स एन एग्जाम्पल फॉर हिज सबऑर्डिनेट्स. अपने जो मातहत होते हैं या उनके जो पीछे जो लोग होते हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल छोड़ते हैं. और दूसरे नंबर पर ये होता है कि आफ्टर डूइंग दैट ही गेट्स इन्फ्लुएंस ऑन देम. अब उस पे उनका उस कम्युनिटी पे उस ग्रुप पे एक इन्फ्लुएंस आ जाता है उस बंदे का. देन ही कोऑर्डिनेट्स विद द पीपल. लीडर इज़ वन हु कोऑर्डिनेट्स विद द पीपल. अब लोगों के साथ मेल जोल रखता है. गॉट इट. एंड लीडर लीड्स द पीपल. अगेन वी हैव डिस्कस हाउ टू लीड, that he does the most difficult task himself. And the final thing is he guides people. Leader is one who guides people. So in a nutshell we can say leader is one who leads from the front, who guides people, who coordinates people, and finally he gets influence on those people. इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि फिर वो हर बात उसकी मानते हैं और उस बात की वेटेज होती है. Now, this is the definition, or these are the ingredients of leadership. We have discussed the main points. Leaders. Now, what is leadership? So, leadership we discuss here because I have written these things on the board. अब यहाँ से हम देखते हैं कि ability to influence or motivate a group or community. अब वो ability, वो काबिलियत जिसकी बुनियाद पे आप मोटिवेट करते हैं, जिसकी बुनियाद पे आप कोई आपका असर रसूख होता है किसी ग्रुप और कम्युनिटी पे. नाउ वी डिस्कस टू थिंग्स हेयर. फर्स्ट टू टर्म्स. फर्स्ट इज मोटिवेट. हाउ टू मोटिवेट समवन. व्हाट इज मोटिवेशन. सो मोटिवेशन मीन इफेक्टिव यूज ऑफ टाइम, स्किल एंड एफर्ट. किसी का वक़्त, महारत और कोशिश जो है वो इस्तेमाल करना सही, उसको मोटिवेशन कहते हैं. सो समवन हु मोटिवेट्स यू, a true leader is one who motivates you by presenting personal examples, by quoting personal examples. अपनी ज़ाती मिसाल के ज़रिए वो मोटिवेट करता है, वो आगे बढ़ाता है और पोटेंशियल इस्तेमाल करने के बाद बेहतरी की तरफ लेके जाता है. So now the other thing which I want to explain here is community. So what is community? Community is a group of people having shared values or common values. लोगों का एक ऐसा ग्रुप जिनकी अपनी कॉमन वैल्यूज़ होती हैं और कॉमन इंटरेस्ट भी होता है.
ठीक है, उनको कहते हैं। नाउ टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ए सर्टन गोल्स, आफ्टर डूइंग दिस वन, लीडरशिप इज ऑल अबाउट द एबिलिटी to get motivation or to lead the people or group or community towards certain goal। ये तो आ गई लीडरशिप की एक तारीफ, लेकिन याद रख ले कि लीडरशिप की कोई स्टैंडर्ड डिफिनेशन नहीं है। सो these are the some of the common things which we have discussed here. Now in a nutshell, we can say, you can see here, the leadership is all about, number one, to lead the followers. A leader is one who leads the followers. Again, when we say that he leads the followers mean he settles personal examples, he leads from the front। ठीक है, तो इसमें नंबर वन, नंबर टू, he brings changes, समटाइम ही चैलेंजेस द एग्जिस्टिंग सेटअप्स, यानी कि वो स्टेटस को जिसे हम कहते हैं, मामलात का जूं का तूं रखना, उनको चैलेंज करता है और चेंज लाता है। एंड द थर्ड थिंग इज he talks about the people and he puts influence on the people for the organizational or national objectives। यहाँ पे मैं नेल्सन मंडेला की एक कोट करना चाहता हूँ, एक बात कि पॉलिटिशियन वो होता है कि जो अगले इलेक्शन का सोचता है, लेकिन लीडर वो होता है या स्टेट्समैन वो होता है जो अगली जनरेशन का सोचता है। द पॉलिटिशियन इज़ वन हु थिंक्स अबाउट द कमिंग इलेक्शन, बट the leader is one who thinks about the coming generations, about the national interest of the people। Okay, यहाँ तक तो हमने लीडरशिप कर लिया कि व्हाट इज़ लीडरशिप। अब लीडर्स के बारे में एक बात याद रख लें कि लीडर्स नेवर एवर थिंक्स अबाउट हिज पर्सनल इंटरेस्ट, he always thinks about the national interests। So in history we see that there are different leaders still who could be quoted as the standard leaders। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बेहतरीन जिनको माइकल हार्ट ने अपनी किताब में 100 वाइज मैन ऑफ द वर्ल्ड, उसमें जो कोट किया, पहले नंबर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उन्होंने लिखा। ठीक है, क्योंकि ही वाज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ गुड लीडरशिप। ठीक है ना, कि इसमें एक एग्जांपल ये भी है कि जब उनके सहाबा कराम की ओपिनियन या उनके फॉलोअर्स ने जब एक पत्थर बांधा होता था अपने पेट पे, तो वो 2 पत्थर बांधते थे। ठीक है, तो मुश्किल हालात से वो ख़ुद गुजरते थे और उनकी बेहतरी के लिए दुआएं करते थे और उनको साथ लेके चलते थे। सो ही इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ गुड लीडरशिप। ठीक है, अब देखते हैं कि लीडरशिप की टाइप्स कितनी होती हैं, टाइप्स कितनी हैं। सो वेरी ब्रीफली वी डिस्कस इट। वन, बाय द पोजीशन ही होल्ड्स। पहला, लीडर बाय पोजीशन। पोजीशन मीन इफ़ यू आर ए CEO और मैनेजर और जनरल मैनेजर ऑफ ए कंपनी और president or prime minister of a country, or you are a leader of a certain clan और किसी कबीले के आप लीडर हैं, तो वो पोजीशन जो आपके पास है, बाय द पोजीशन ही होल्ड्स, उस पोजीशन के ज़रिए आप लीडर बन जाते हैं। तो ये पहला लीडरशिप की टाइप ये है। इन दिस कनेक्शन वी हैव लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, गॉट इट। तो वो आप देख सकते हैं। दूसरा, बाय पर्सनालिटी। समवन, इफ समवन हु इज़ नॉट who is a younger even, but he gets lots of potential to lead the people। याद रख लें कि जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं वो कभी भी पैदा नहीं की जा सकती, उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। दीज आर इनबॉर्न क्वालिटी। नेचुरली ऑलमाइटी अल्लाह गिव्स समवन दोज क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। सो बाय पर्सनालिटी, इफ़ योर पर्सनालिटी इज़ good, you can take decisions, you are cool minded, you can lead from the front, then you are a leader by personality। The third thing is by power held। So this is by the power held mean since the dawn of human civilization you could see that the powerful people, they led the people by the stick, can I say, or by bullet। आप हिस्ट्री में बड़े बड़े फ़ातीन को देख लें, we can see
गेंगिस खान, चंगेज़ खान को देख लें, फिर आप तैमूर, अमीर तैमूर है, उनको देख लें, ये जितने जितने बड़े बड़े फाते, सो दे held this position by the power they had. The third thing is by moral examples. Moral examples mean कि इखलाकी, जो आप इखलाकी तौर पे इतने लॉफ्टी कैरेक्टर के मालिक हैं, इतने अच्छे कैरेक्टर के हैं कि आपकी मॉरल पोजीशन इतनी अच्छी है कि पीपल एडमिट यू एज योर लीडर. एज आवर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was given the name of Sadiq and Amin, and people even before Islam, they, although he was younger at that time, but उन्होंने अपना लीडर माना था एक दो मौक़ों पे, जो हमें पता है, ख़ास तौर पे जो खाना काबा की तामीर के वक़्त जो कुरैश ने की थी. So by moral example, and the last type is by intellectual lead. Intellectual mean, लेकिन ये चीज़ जो intellectual lead होती है, ये पढ़ी लिखी सोसाइटीज़ में होती है. Sorry to say, not in the societies like our society. If you are a good scholar, if you are a good intellectual, people give you reward, people adore you even. People give you respect, and they say that he is our leader. By intellectual lead, we can say like if someone is very good scholar and people follow them, like we have in civilized society, or one of the example is Allama Iqbal. He is our national poet. Got it? He was a good philosopher. But why people call him their intellectual leader? Because he had the intellectual ability to lead the people. He had intellectual ability to lead the people from the front, to guide them, to show them the path. Got it? So it was the brief discussion about leaders and leadership. अब आप सोच सकते हैं कि अच्छा लीडर कौन सा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और उसके अंदर उन क्वालिटीज़ को इस्तेमाल करने के अलावा सिंसेरिटी किस लेवल की होनी चाहिए, और अगर अच्छे लीडर मिल जाएं तो उसका क्या फ़ायदा होता है. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट द नेशन gets the nation gets its objective very soon, its goals very soon, if the leader is good. अगर लीडर अच्छा हो तो अपनी मंजिल को पहुंच जाते हैं लोग. Thank you very much. See you again.